Hello, my dear students. Welcome to the science class. We are going to start with lesson number 9 land. This is our second term portion. Already in the second term, we have started with lesson number 8, that is science of kitchen. And I've already sent you notes, children. That is in your workbook only. We have the workbook, it is divided first term and second term. So this is the second term lesson, and we have done lesson number 8 of second term. This is the second lesson of second term, and it is in the textbook lesson number 9, page 71, children. So we will study about the land, how the crops grow, the different types of soil in this lesson, what are the different components of soil. All this we will learn in the lesson land. So we'll start with the reading. So I hope you all are very fine, and now keep your textbook open when you go through this video, children. So we are going to start with lesson number 9, page 71. Ready? Okay. Magan Bhai will read one story here, children. Magan Bhai, after taking his dinner, sat for watching TV. As usual, we all watch TV, children. That is, after dinner, we sit all together and watch TV. The baby Zeel came running to him. She said, "Grandfather, tell me a story." So, see, when small children are there and grandparents are there at home, we usually like to hear stories from our grandparents. They say so good stories, and the stories are so heart touching and all. We just want to learn good things from them, and so we learn and we ask them to tell us a story. So which story do you want to listen? Grandfather asked. The one which I enjoy the most. So Zeel, now the baby Zeel said that I want to hear a good story which I will enjoy. Okay, said the grandfather, and began the story. Now see the story. There was a small village. Who is telling this story? Seer. Grandfather is telling story to baby Zeel. There was a small village. A potter named Magan Bhai stayed here. So he is using his own name here to tell the story. Every day he brings soil from the lake and prepares pots and bowls. See here, children. In the olden days, everything was made of mud. It was all the vessels, cups, bowls, pots, even to make roti, tawa, everything was made of mud. So in the olden days, everything was made of mud. So prepares pots, bowls, etc. One day prepared a small pot. He painted it colorful. So on that pot you can do colorful paintings also. The pot looked very beautiful now. He kept the pot in his shop for sale. The next day Ramesh Bhai was passing near his shop. He saw the pot and immediately purchased it. So when we see such beautiful paintings and all beautiful pots, so Ramesh Bhai also saw and he purchased the pot. His daughter Bindya became extremely happy after seeing this small pot in Ramesh Bhai's hand. She said, "Papa, I will fill water in this small pot." So, pots keep the water so cool. Even the refrigerator water is not good for our health, children. But this pot water, it becomes so cool. Mitti ka bartan jo hota hai. If you fill water in this mitti ka pot, it is becoming so sweet, and the water becomes so cool in this. So, Bindya is the daughter of Ramesh Bhai, and she said that I will fill up the pot with water. Okay, said Ramesh Bhai. Now every day Bindya fills water using this small pot. One day the pot slipped from her hands, fell down and broken it into pieces. Heartbroken, Bindya collected the pieces and kept them behind the house. Now what happened? Every day she was filling up the water in this pot, and the pot, see, it is of mud, so it can break also. When it falls from our hands, it can break. The grandfather asked, "Now tell me, dear, what would have happened to these pieces?" "Some girls like me must have used them for playing games." So वो चिप्पी नहीं खेलते हो आप लोग, लंगड़ी करके जो चिप्पी खेलते हो, उससे भी आप लोग वो टुकड़े यूज़ करते हो, टाइल्स के टुकड़े, पॉट के टुकड़े. तो झील ने बोला कि आई वुड हैव यूज्ड फॉर प्लेइंग माई गेम. You are correct. These species are mixed again with the soil. Again, these species are mixed with the soil. Hearing this, confused Zil asked what other things get mixed in the soil. So again, these broken pieces of pot get mixed with the soil. Turn on your page, children, 72 page. See, here we have one activity. Spade, sieve for sieving wheat, sieve for sieving wheat flour, thin cloth, lumps of soil. So what we need here? See here. Spade we need to take out the soil. चम्मच जैसा आता है spade. Sieve मतलब छालनी जैसा होता है जिसमें हम लोग आटा वगैरह छानते हैं.
वैसी छालनी चाहिए, हम लोग गेहूँ का आटा छानते हैं वैसी छालनी। थिन कॉटन क्लॉथ और सॉइल के टुकड़े, सॉइल के टुकड़े हो या सॉइल एक साथ में मट्टी हो बहुत सारी। व्हाट डू वी डू? टेक वन लंप ऑफ सॉइल, टर्न इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज। जैसे बड़ा आपका टुकड़ा मिला हो कोई मट्टी का, उसको तोड़ दो पहले और उसको छलनी में, देखो आपको पेज में दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, उसको छान लो। व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव? देखो नीचे सब मट्टी गिर रही है एकदम बारीक वाली, और ऊपर क्या बच जाएगा? छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े होंगे, छोटे छोटे मट्टी के टुकड़े। ऑब्जर्व इट एंड नोट, कीप द कंपोनेंट लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली। सो व्हाट इज लेफ्ट इन द सॉइल? सीव, ऊपर क्या बच गया? सीव मतलब छलनी, ऊपर क्या बच गया? स्मॉल स्टोन्स आर लेफ्ट। जो ऊपर बच गया वो इधर लिखने का, ये बॉक्स में। दिस यू डोंट हैव टू राइट इन द टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन, एवरीथिंग आई विल बी गिविंग यू इन द वर्कबुक एज आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम। ऑल द नोट्स आई विल बी गिविंग यू इन द वर्कबुक। वॉट इज सीव्ड आउट ऑफ द सीव? मतलब नीचे क्या गिर रहा है? बारीक मट्टी, एकदम स्मूथ मट्टी। देखो अदर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल गॉट सीव्ड आउट, जो बाकी का पतला वाला कचरा था वो सब नीचे गिर गया, ऊपर बड़े बड़े टुकड़े रह गए। अभी देखो सेम एक्टिविटी वापस कंटिन्यू करनी है। एक्टिविटी 2, जो नीचे गिरी हुई मिट्टी है, कलेक्ट द सीव्ड पार्ट एंड सीव इट विद द सीव यूज्ड फॉर सीविंग फ्लोर। अभी फ्लोर जिसमें हम लोग आटा छानते हैं उससे करो। वॉट इज लेफ्ट इन द सीव? ऑब्जर्व। अब ये आटा छानने वाली छलनी से करके वॉट इज लेफ्ट उसको अलग से हम लोग वापस रखेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे लिखना है, वॉट इज लेफ्ट इन द सीव? सैंड इज लेफ्ट इन द सीव। क्या बच गया? सैंड। ऊपर क्या बच गया? मोटी वाली मट्टी, और नीचे क्या आ गया? एकदम पाउडर आ गया। क्या आ गया? पाउडर। यानी पहले सीव बड़े वाली छालनी से किया, बड़े वाली छालनी से छाना तो क्या आ गई रहा? मट्टी के साथ दूसरे भी उसके पार्ट्स गिर गए और ऊपर पत्थर रह गए। फिर एकदम बारीक वाली छलनी, आटा छानने वाली छलनी से चला तो नीचे एकदम बारीक मट्टी गिर गई और ऊपर थोड़े थोड़े दूसरे क्या बोलते हैं, सैंड बच गए। सैंड और सॉइल में फ़र्क है चिल्ड्रन? सैंड थोड़ा सा रफ होता है, सॉइल एकदम स्मूथ होता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, अब तीसरी बार छानेंगे। कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन पीस। देखो पेज 73 पे कपड़े से छान रहे। किससे छान रहे? कपड़े से। सो व्हाट इज लेफ्ट ऑन द क्लॉथ? ये इधर लिखना है अपने को। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर्ड कंपोनेंट एंड नोट, सेपरेट द कंपोनेंट लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लॉथ। तो अभी इसमें क्या बचा है? सिल्ट। क्या बच गया? एकदम मट्टी का छोटा छोटा पीसेस, और एकदम अभी क्लियर सॉइल। क्लियर मतलब एकदम बारीक वाली सॉइल तीसरी बार छानी। तो 3 बार छाना। एक बार बड़ी छलनी से जिसमें ऊपर क्या बचा? स्टोन्स बचे, और जो नीचे जो निकला था वो क्या था? सैंड, सॉइल और बाकी सब भी छोटा छोटा कचरा। फिर जब आटा छानने वाली यानी बारीक वाली छलनी यानी व्हीट फ्लोर की सीव से हमने जब छाना तो क्या बचा? नीचे फाइन सैंड और सॉइल हो गई, और क्या बच गया? सैंड ऊपर बच गया और नीचे एकदम सॉइल निकल गई। और जब तीसरी बार छाना तो एकदम कपड़े से छाना। थर्ड थिंग किससे किया? कॉटन पीस से, तो एकदम नीचे बारीक वाली सॉइल हो गई। सो थिंक एंड से यहाँ पर है। अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन? इससे क्या पता चल रहा है कि सॉइल के अंदर सैंड के साथ साथ और क्या क्या मिक्स होता है और हम लोग सॉइल को कैसे अलग कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी इज शोइंग यू दैट वी आर सीविंग द lump of soil, lump of sand in 3 different categories। एक बड़ी सीव से, देन व्हीट सीव मतलब जिससे हम लोग आटा छानते हैं उससे, और थर्ड थिंग इज कॉटन क्लॉथ से चिल्ड्रन। तो उसका आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिखना है और थिंक एंड से आई विल गिव यू द आंसर्स इन द वर्कबुक चिल्ड्रन। विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर सीविंग द सॉइल विद डिफरेंट साइज? चलो देखो पहले क्या निकला? स्टोन, देन सैंड, थर्ड पार्ट में क्या निकला? सिल्ट एंड डस्ट प्रेजेंट इन इट, वो अलग रह गया कपड़े में। कैन देयर बी एनी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल? और कुछ भी हो सकता है? यस, अदर कंपोनेंट्स कैन बी देयर। क्या क्या हो सकता है? मॉइस्चर मतलब थोड़ा गीलापन, उसमें मेटल भी हो सकता है मिक्स करके, मिनरल हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑल दिस इज मिक्सड इन द सॉइल। ये सब चीज़ें भी सॉइल के अंदर हो सकती है। तो आप कोई भी सॉइल उठाओ, इसमें बारीक घास भी होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी होगा, थोड़ा गीलापन मॉइस्चर भी होगा, सैंड भी होगा, स्टोन भी होगा। सो दिस आर द कंपोनेंट्स। सॉइल के अंदर ये सब चीज़ें मिक्स होती है। हाउ डू अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल? मतलब जिस तरह का सॉइल होगा उस तरीके के उसमें कंपोनेंट्स होंगे। सो अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स चेंज द टाइप ऑफ soil and its constitution. If the amount of sand is more,
जिसमें सैंड ज़्यादा है वैसे वाले सॉइल को बोलेंगे सैंडी सॉइल. इफ़ द अमाउंट ऑफ क्ले इज मोर, मतलब ज़्यादा क्ले ही होगा, चिकनापन होगा, वी कैन कॉल इट वॉट क्ले सॉइल. ये सब सॉइल के डिफरेंट टाइप्स है चिल्ड्रन. एंड इफ द अमाउंट ऑफ सिल्ट इज मोर, सिल्ट मतलब फर्टिलाइजर और उसका जो क्या बोलते हैं क्वालिटी हाई होगा, इट इज कॉल्ड एज वॉट एल्यूवियल सॉइल. अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी and the draining capacity of the soil also changes. So according to the components of soil, कितना उसमें पानी रहेगा, कितना पानी नहीं होगा, that will depend on the components of the soil, children. So here in this lesson we are going to study what are the components of soil, and according to the components what is the type of the soil. Come on page 74 children. Again one more activity 4 is there. Here in this activity what we need, see picture is also given. Transparent plastic bag, transparent glass spade, lump of soil thread. Spade मतलब जिससे हम लोग मट्टी निकाल सकें. So what will you do? Bring 3-4 lumps of soil from the nearby farm. किधर से भी मट्टी लेकर आओ, soil के बड़े बड़े टुकड़े. From 1 feet depth, मतलब थोड़ा खोदने के बाद लाना है, ऊपर का नहीं, खोदने के बाद लाओगे तो थोड़ा गीला मिट्टी मिलेगा. Then keep 1-2 lumps of soil in the transparent plastic bag and tie its mouth with thread. देखो ऐसा बांध दिया है, उसके अंदर मट्टी के टुकड़े रखे. Now keep this plastic bag in the sunlight for some time. इसको कहाँ रखना है, sunlight में रखना है. After some time bring it to the class and observe. Come on, we will observe now. Inner wall of the plastic bag. क्या होगा अंदर के साइड पे प्लास्टिक बैग के, देखो क्या होगा बोलो तो, वाटर. क्या होगा, द इनर वॉल में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल. छोटे छोटे पानी का ड्रॉप्स दिखाई देगा. अब क्या रीज़न है, आपने कहाँ से मट्टी निकाली थी, थोड़ा डीप जाकर, मतलब अंदर से खोद के निकाली थी. यानी अंदर की मट्टी कैसी होती है, मॉइस्चर वाली, वेट. और आपने उसको किस में रखा, प्लास्टिक बैग. वंस यू हैव केप्ट इन प्लास्टिक बैग ट्रांसपेरेंट, उसको सनलाइट में रखा तो धीरे धीरे सॉइल में से क्या छूटेगा, वाटर इवेपोरेट होगा. तो इसलिए आपको वो वाटर जब इवेपोरेट होगा, प्लास्टिक बैग के ऊपर टच होगा, इट विल फॉर्म इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स. सो व्हाट इज द रीजन, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द लंप इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट. दिस वाटर इज विजिबल एज ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग. तो आपको ये ट्रांसपेरेंट, ये समझ में आया. एक्टिविटी 4. सी दिस एक्टिविटी इज वेरी इजी चिल्ड्रन. ओके, so you can try this at your home. Now we are not in the class, you can try this at your home. गिल्ली मिट्टी लेना थोड़ी, then और सनलाइट में रखना, तो अंदर जो होगा पानी के थोड़े थोड़े आपको, प्लास्टिक की बैग थोड़ी थोड़ी गिल्ली हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटीज, 5th एक्टिविटीज, एक्टिविटी 5. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. क्या लिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास. फिल इट विथ वाटर. अब उसमें सॉइल डालना है. क्या डालना है, सॉइल का टुकड़ा. लंप मतलब सॉइल का थोड़ा टुकड़ा. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, किस में डाला है हमने, ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाला है. उसमें क्या डाला है, सॉइल का लंप. क्या होगा, अंदर से बबल दिखाई देंगे. ये क्या है, बबल, मॉइस्चर है. व्हाट इज इट, मॉइस्चर, वाटर वेपर. और अब पानी के अंदर है इसलिए हमें वो बबल के फॉर्म में दिख रहा है. एयर जो है हमें वहाँ पे बबल के फॉर्म में दिख रही है. बबल्स आर सीन नियर द सॉइल. यू कैन सी ऑन पेज 74 चिल्ड्रन. बबल्स आर सीन नियर द सॉइल लंप एंड ऑन द वाटर अबाउ द सॉइल लंप. व्हाट इज द रीजन, एयर प्रेजेंट इन द सॉइल लंप कम्स आउट. तो ये अंदर क्या है, एयर है. सॉइल के अंदर हमने क्या देखा, मॉइस्चर देखा. ऊपर वाली एक्टिविटी में क्या देखा कि सॉइल में मॉइस्चर है, पानी है. अब दूसरी एक्टिविटी में क्या देख रहे हैं, सॉइल में एयर भी है. सॉइल में क्या है, एयर भी है. सो मॉइस्चर भी है यानी वाटर भी है और एयर भी है. अब ये एयर कहाँ निकल रही है, इट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड द वाटर टेक्स इट प्लेस. और अब ये पानी और मिट्टी और भी क्या हो जाएगी, गिल्ली हो जाएगी. अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन. सो रिमेंबर एंड राइट नाउ विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिगिंग द सॉइल. क्या क्या हमें मिला सॉइल में से. आपने पहले एक्टिविटी में क्या देखा, सिल्ट. ये सब सॉइल के कंपोनेंट्स है. सिल्ट, सॉइल, सैंड, डस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक रॉटन लीव्स, डंग, मिनरल्स, मेटल्स, इवन अर्थवर्म भी हो सकते हैं, छोटे छोटे बारीक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. ओके, सो ऑन द नेक्स्ट पेज, सी पेज 75 चिल्ड्रन. विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें हमारी आंखों से ना दिखाई दे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं सॉइल में, अर्थवर्म्स हो सकते हैं, दे आर फाउंड इन द सॉइल. विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली. अपने अपने क्या देखा हम लोग, क्या छाना था ना, मट्टी को छाना, तो क्या मिला था, स्टोन, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, सॉइल, ये सब भी देखा.
हमने जब मिट्टी को अलग किया। साथ में आपने ये भी एक्टिविटी देखी कि मॉइस्चर भी होता है सॉइल में और एयर भी होती है. सो different components of soil like stone, coarse sand, fine sand, silt and soil are also seen separately. Here see the blue box on page 75 children. Leaves, feather, ये सब मिट्टी के अंदर मिक्स हो सकता है. Parts of living organisms, कभी कोई organism मर गया उसका कोई parts हो अंदर, these are living components. These are called what? Living components. और sand है, stone है, clay है, dust है, ये सब क्या होगा? Non living components. So here in the box you have to write down biotic and abiotic. Biotic means what? Living. Microorganisms, excreta of animals, मतलब जो एनिमल्स का वेस्ट होता है वो, लीव्स, डेड ऑर्गेनिजम्स के पार्ट, बर्ड फेदर्स, ऑल दीज आर व्हाट? लिविंग कंपोनेंट्स. ऑल दीज आर व्हाट कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक में क्या होगा? स्टोन, सैंड, मड, सिल्ट, ये सब क्या होगा? एबायोटिक. सो हियर ऑन द ब्लू बॉक्स यू सी पेज 75 चिल्ड्रन. मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब क्या है? यू नो दे आर मिनरल्स एंड दे आर फाउंड इन द सॉइल ओनली. सो लैंड में से हमें ये सब चीज़ें मिलती है. वॉट? मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में से क्या बनता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस, सी जो आपका गैस वगैरह है, एक्सेट्रा आर obtained फ्रॉम सॉइल. सो मेनी थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम सॉइल. इज एनी सच थिंग्स obtained नियर बाई यू? मतलब आपके यहाँ पे कोई है ऐसा मार्बल बनाने की कारखाना या मार्बल बनता है वहाँ पर, वो ऐसी कोई ज़मीन हो या जहाँ से अपने को पेट्रोल निकलता हो? सो दिज आर फ्रॉम द सॉइल ओनली चिल्ड्रन. इवन मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन आर ऑल obtained फ्रॉम द सॉइल. मतलब जहाँ माइनिंग एक्टिविटी होती है, माइनिंग होता है, जहाँ से अंदर से मेटल्स निकाले जाते हैं, कोल वगैरह, हाँ, तो ये सब माइनिंग एक्टिविटी होती है और ये सब कहाँ से निकलता है? सॉइल में से ही निकलता है. सो सॉइल के कितने सारे आपने अब तक कंपोनेंट्स देखे? सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स डिड यू सी? So many stones are there, sand is there, dust particles are there, leaves are there, remains of dead animals are there, excreta of animals are there, feathers is there, then microorganisms, earthworms, all things are mixed in the soil. Moisture, water, air, all this is present in the soil. Even metals, minerals, everything is mixed in the soil. So land and soil is very important. That is why we are doing this chapter, children. Land and soil. So this is very true, children. So here I will stop for this video. The second part of this lesson I will explain in the second video. Otherwise your video becomes very big, children. So go through this till page 75. You read the textbook also when you go through this video. Our lesson starts from page 71 and I have completed here till page 75, children. In the second part I will start with page 76. So understood which are the components of the soil? What are the things mixed in the soil, children? So continue our second part in the next video, children. Okay, we will take a pause here and then we will continue the second part.